اگر اس موضوع کو ہم لیں تو مولا علی کا یہ جملہ دو ٹکڑے ہو کر اس پہ جمتا ہے. دو حدیث ایسے ہیں جو کبھی شیئر نہیں ہوتے. ایک طلبگار دنیا، ماڈرن دور طلبگار دنیا ہے. ایک طالب علم دین کو جاننا، دین کی اہمیت کو جو ضابطے ادب طے کرتے ہیں علمی مدرسوں میں، جن کے پاس تنہائیوں میں قرآن کو پڑھنا، آیتوں کو سمجھنا، غور و فکر کرنے کا شعور و ادراک ہے، وہی دین کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. ورنہ یہ دنیا تو انسان کو دیکھیے کیوں ہم اس قدر کہہ رہے ہیں کہ اپنے گناہوں پہ ڈال کے پردہ اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. انسان کیا ہے، چاہے وہ اپنی زندگی کو دنیا کے لیے گزار دے یا آج انسان اوور اسمارٹ بن گیا ہے. جب چاہا دین کا چولا پہن لیا، جب چاہا دنیا کی طرف اپنے آپ کو موڑ لیا. نہ خدا ہی ملا، نہ مثال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. اگر نماز پڑھتی ہیں ٹھیک ہے، نماز پڑھنے بہت اچھا ہے، ضروری ہے، پڑھنا ہے، واجب ہے. لیکن ان نمازوں پر کیا کریں جو نماز پڑھنے کے بعد تکبر کی وجہ سے صفحے جو ہمارا صفحہ ہے نماز کا آج کا وہ مٹ جائے تکبر کی وجہ سے. ایک بک آئی ہے قیامت 3 منٹ قیامت میں، بہت پیاری بک ہے. آج کے دور میں ضرورت ہے اس بک کو پڑھنے کی کہ ہم سمجھتے ہیں عبادت کر کے کہ ہم بڑے عبادت گزار. آج ہر ایک دن سب سے زیادہ شہرت کی بھوک دین کے ٹھیکیداروں کو ہو گئی ہے. چیریٹی بھی کریں گے تو نام آئے، تصادم کمیٹیوں میں تصادم، انجمنوں میں تصادم، ذاکرین. یہ کون سے دور کے دور جدید ہے کہ دور جہالت ہے کہ عالم کے پیچھے کامنٹ پاس کرتا ہے. عالم کے لیے انجمن سے یاد رکھیے گا ہمارا ہدف اپنا نام نہیں ہے. جو نام کے لیے کام کرتے ہیں، چاہے نام کے لیے مجلس پڑھے، چاہے نام کے لیے مدرسہ چلائے، چاہے نام کے لیے چیریٹی دے، یاد رکھیے گا اللہ صرف تقوی گزار اور خالص عمل کو قبول کرتا ہے. اور جن کے عمل میں اخلاص نہیں ہے ان کے عمل کی خدا کو ضرورت بھی نہیں ہے. خدا صرف تقوی اور متقی پرہیزگار. یہ شہرت کی جو بھوک ہے، جو ہوا و ہوس ہے، شیطان ہے جو ہمیں اس راہ پہ بھٹکا دیا، اس راہ پہ لگا دیا، منزل سے بھٹکا دیا. کہاں جانا تھا ہمیں، عشق امام زمانہ میں ڈوبنا تھا، مال کی محبت میں غرقاب کر دیا، شہرت کی محبت میں غرقاب کر دیا. وہ پہلے کے دور تھے عزیزم، غور کیجیے گا. وہ پہلے کی خواتین تھی جو کم پڑھی لکھی تھی، کچھ تو ان پڑھ تھی، لیکن وہ عمل میں ہم سے بہتر تھی. وہ شوہر کی عظمت جانتی تھی، وہ بچوں کی تربیت جانتی تھی، وہ اپنے اخلاق کو جانتی تھی، کیونکہ معلوم تھا جھاڑو دینا ایک مومنہ کا صحیح خانے کعبہ میں جھاڑو دینا ہے. آج ہمیں نہیں معلوم. آج ہم نوکرانی سے جھاڑو دلاتے ہیں، نوکرانی سے برتن دھلاتے ہیں. ہمیں آرام چاہیے، ہمیں عیش و عشرت چاہیے، ہمیں گاڑی بنگلہ چاہیے. اب افسوس کی بات ہے جہاں رہنا نہیں ہے وہاں کمفرٹیبل لائف چاہیے. مولا علی کے جملے کو بھول گئے. جب آپ نے پوچھا مولا آپ سے پہلے کی 3 حکومتوں میں بڑے بڑے گیسٹ ہاؤس میں رہتے تھے، مولا آپ پھٹا ہوا پردہ اور پھٹا ہوا بولیا. مولا علی نے فرمایا میں نے اپنی زندگی کا کمفرٹیبل سامان وہاں منتقل کر دیا ہے جہاں مجھے جانا ہے. اور ہم دنیا کی تقلید میں ہے، نہ ہم علماء کی رہبر اعظم کی تقلید میں ہے، نہ ہم اپنے علاقے کے کوئی، ہم اپنی نفس کی تقلید میں ہے، نفس کی تقلید میں ہے ہر انسان. اس لیے مولا علی نے کہا اس کو اقتدار، اس کو جس کو اپنے قلب کے اوپر دسترس حاصل ہے، جس نے اپنے خواہشوں کو دبا دیا، وہی تو اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو گیا. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. وہاں خواہشیں نہیں ہے، عبادت میں پڑے ہیں. یہاں خواہشیں بھی ہیں، عقل بھی ہے. جانور اور فرشتے کے بیچ کے ہیں ہم لوگ سب. مولا علی نے یہی کہا اگر خواہشوں کو دبا دیا تو فرشتوں سے افضل، اگر خواہشوں کے غلام ہو گئے تو جانور سے بدتر، جانور سے بدتر. عزیزوں یہ ٹاپک اتنا اچھا ٹاپک ہے کہ اس پر بہت وقت درکار ہے، لیکن میں کوشش کروں گی کچھ جملے میری چھوٹی بیٹیوں کے لیے کہہ دوں. اگر آپ غور کریں نا، ہم اشرف المخلوقات جس کے لیے خدا بندے کریم نے سورہ والتین والزیتون بسم اللہ الرحمن الرحیم قسمیں اٹھائی ہیں، اور اگر آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو میں 2-4 جملے تقابل کر کے بتاؤں گی. بھیڑیے کو سنا ہے؟ بھیڑیا، درندہ، خونخوار،
सुना है ना, आर्टिकल आया था सियासत पेपर में, पढ़ने के बाद मैं हैरान हो गई। और उस आर्टिकल के कुछ जुमले आपकी समातों पे नजर करूंगी कि क्या वजह से दरिंदा ऐसा काम करता है जो अशरफुल मखलूकात नहीं करती। दरिंदे की 3 सिफतों के टॉपिक से अलग है, लेकिन छोटे बच्चों को समझ में आएगा। दरिंदा खूंखार जानवर है, लेकिन उसके अंदर गीरत इतनी है कि वो दूसरों का शिकार किया हुआ जानवर नहीं खाता, यानी रिस्के हलाल अपनी मेहनत का खाता है। हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं, जिंदगी गुजर जाती है, कुछ अच्छा नहीं करते, दूसरों के ऊपर फेरी बन के जीना चाहते हैं। अली वाला लश्कर की तरह होना चाहिए। हमारे लिए जीनत बनो, जिल्लत न बनो। फिर एक और सिफत ये होती है कि वो अपनी फैमिली से, देखिए आज सोशल मीडिया की वजह से, यूट्यूब की वजह से आज बच्चे सने बलोगियत में ही मैच्योर हो रहे हैं। आज इक़दार की कदर हमारा गिर गया है। दीन कहाँ है? दीन का नाम सिर्फ हिजाब नहीं है, दीन का नाम गीरत है, दीन का नाम पासदारी है, दीन का नाम शर्म और हया है, दीन का नाम अपने कम्युनिटी के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, अपने माशरे के लिए, अपनी कौम के लिए कुर्बान हो जाना है। आज हमारी कौम में सुबह कब हो रही है? अगर यहाँ सुबह हो रही है तो शुक्र है, लेकिन आज हम लोग कहाँ, हम अगर देखे तकाबुल तो जुमले और भेड़िया जो काम करता है, लाइफ पार्टनर बनने के बाद वो रीमैरिज नहीं करता, चाहे मेल हो फीमेल हो, अपने बच्चों के लिए लाइफ डोनेट करता है। और जब वो उनके पेरेंट्स ज़ईफ हो जाती है तो वो अपने पेरेंट्स को इस्लाम बता रहा है। जब तुम अपने बुजुर्गों के साथ बाहर निकलो तो बुजुर्गों को सामने रखो। आज बुजुर्ग पीछे लकड़ी लेके आते हैं, जवान मजलिसों में आगे निकल जाते हैं। भेड़िए से हम बदतर है कि नहीं है? वो भेड़िए हैं, लेकिन अपने माँ बाप को बीच में रखते हैं और नौजवानों को उसके पीछे रखते हैं जब वो चलते हैं। और तजुर्बेकार जो स्पॉटी के यानी जो बिल्कुल आर्मी के साथ जाते हैं हमले, उनको पीछे रखते हैं और अपने बूढ़े माँ बाप को तहफ़्फ़ुज़ के साथ लेके जाते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं। और जब वो शिकार करते हैं तो अपने पेरेंट्स को खिलाते हैं। ये सब गीरत कैसे आई? हलाल ग़िज़ा की वजह से। ग़िज़ा हलाल हो जाती है तो इंसान कई बुराइयों से बच जाता है। खुम्स नहीं देते हैं तो ग़िज़ा हराम हो जाती है। दीन आए मॉडर्न दौर ने जिसने हमें मखलूज कर दिया। जो जानते हैं 25 साल पहले की जिंदगी और आज की जिंदगी में देखिए, पहले की ख़वातीन 70 ईयर्स की भी थी, बिना फेशियल के उनके चेहरे चांद की तरह चमकते थे, क्योंकि वो हार्ड वर्कर थी, चक्की पीसती थी, पानी सहती थी, पानी भरती थी, चक्की पीसती थी, झाड़ू देती थी, घर का काम करती थी। हमारी तरह गैस स्टोव बर्तन दबाते ही चूल्हे में से फ्लेम नहीं आता था, धुआं पेट भर के लेकर प्यार से मोहब्बत से मुस्कुराते हुए रोटी पकाती थी, इसीलिए बीमारियां भी कम थी। आज आराम की जिंदगी है, उसके बावजूद वो कभी न शोहर से शिकायत, सवाल ही नहीं बात करने की तो शिकायत कहाँ करेंगे। इतनी हद तो अदब की पासदार बागया बाफर ख्वाहिश करना तो बहुत दूर की बात है। इतनी गीरत थी, इतनी लाज और शर्म थी कि सर उठा के बड़े लोगों के सामने अपने शोहर से बात भी नहीं करती थी। आज ये मॉडर्न दौर ने उस औरत को क्या बना दिया? आज अंग्रेजी तालीम ने उस औरत को क्या बना दिया जो मर्द से कह रहे मुझे बुला देंगे या तलाक देंगे या मैं बुला ले लूं। ये मॉडर्न दौर ने औरत को कहाँ लाके ठहरा दिया? कलीसिया में रहना दूसरे एक है, लेकिन मैं क्यों के मैं हिंदुओं के साथ ऑफिस में रहती हूँ, सिस्टम ऑपरेटर हूँ, सुन्नियों के घर और महीने में मेरा घर है, मैं उनकी पर्सनल लाइफ से वाकिफ हूँ और अपनी कौम में जाती हूँ तो मुझे मेरा दिल रोता है। हमारी कौम को क्या हो गया? हमारी कौम में हया कहाँ चली गई? हमारी कौम में पासदारी कहाँ चली गई? हमारी कौम में मोबाइल फोन जब से आया इंसान बौला हो गया। मोबाइल फोन जब से आया इंसान बेहया हो गया। मोबाइल के लेके बैठ जा रही है कि हम जो करेंगे हमें क्या मालूम है। हाथ जोड़ के दरख्वास्त है उन खवातीन से जो मोबाइल फोन में कुरान और ज़ियारत पढ़ती है, गुजारिश है आप मोबाइल फोन में ज़ियारत ना पढ़ें, आप मोबाइल फोन में कुरान ना पढ़े। वो मासूम बच्चों को क्या मालूम कि आप क्या पढ़ रही हैं? माता किरदार का अक्स बच्चों पर पड़ता है। आप थोड़े आज हमारे हाथ सुन्न हो रहे हैं मोबाइल फोन को पकड़े। मैं आपको लिख के दूंगी जाने से पहले, चैलेंज करके जा रही हूँ। जिन माओ ने अपने बच्चों को छोटी सी उम्र में मोबाइल फोन दिया उनके बच्चे SSC में फेल हो गए, क्योंकि जहन और दिमाग पे ऐसा काम करते हैं कि इंसान उसी का हो जाता है। और कार्टून लगा के अब तो लोग मजलिसों में बच्चों को मोबाइल फोन दे के बिठा रहे हैं। ये एक जगह बाकी थी जब हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकते थे, उसमें भी बाकी में फाड़ के खिलाया जा रहा है मोबाइल फोन पर बच्चों को कार्टून। उन माओ से मेरा सवाल है, पहले की माएँ कब पढ़ी लिखी थी? इतना तो जानती थी कि बच्चा हुसैनी बनेगा, बच्चा आजादार बनेगा, बच्चा करबलाई बनेगा, बच्चा मजलिस और घर से अखलाक बनेगा, रूहानी ग़िज़ा मिलती है। आज की पढ़ी लिखी माँ को क्या हो गया है? वो एक प्लेटफॉर्म जो बचा है उससे भी
बच्चे को ये वो देके केक खिलौने खाने की चीजें मोबाइल फोन देके बिठा रही हैं। याद रखिएगा अजीजम, जिंदगी का कारवां रवां दवा है, मंजिल दुनिया नहीं मंजिल आखिरत है, मंजिल दुनिया नहीं हमें जाना है। मौला अली ने फरमाया हम लोग कहते हैं शिया लिबास पहनने से और शिया कौम में पैदा हो जाने से ये करम उनका है, ये सब तुम्हारा करम है मौला के बाद अब तक बनी हुई है। शिया कौम में पैदा होने के बाद अली अली और जाकिरीन के गले घूट दिए गए। 25 साल पहले से जाकिरों को ये कह के मिंबर पे बिठाया गया कि अली के फसाइल पढ़ो, तो मिंबर सिर्फ अली के फसाइल के लिए है। क्या क्या किया गया? कुछ लोगों ने अली 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 अल्लाह के नारे लगाए कौन को, क्योंकि एक वाहिद हमारी कौम है जिसका इमाम जिंदा है, जिसका इमाम जिंदा है, उस कौम को मुर्दा बना दो। पूरी चाल, इतनी चाल की गई कि मोबाइल फोन जहां बना है ना वहां बच्चे नहीं यूज करते हैं, हमारे पास यूज करते हैं। अजादारों जानिए कि हम किसकी कनीज है, बस ये सोचिए, और जब ये सोचे ना तो आंखों से आंसू निकलेंगे। हम जैसे खाना खराब दिल और जहरा की कनीज है।